Hello friends, today we are going to discuss some illustrative example of our NCERT textbook. In past video we are clear the relative concept, theoretical concept which is necessary to solve this example. Okay, so let me start this example. So first question is what? Calculate the angle of 1 degree 1 minute and 1 second into the radians. Means you have to convert the given value of angle, that is in terms of the degree or minute or second, and that value you have to convert it in the form of radian. Okay, so we know that the 1 degree equal to what? Okay, this conversation we were already talked in the past video, but still I will repeat. Okay, I am repeating. So what is the formula? We know that the pi is a radian and its value in the degree we are consider as what? 180 degree. Okay, so you are writing one formula, 180 degree equal to pi radian. So 1 degree equal to how much? Cross multiply it. So 1 into pi divided by 180. So your answer is what? Pi by 180. Yes or no? So whenever you are converted your degree power into the radian, then what you have to do, whatever the value of degree is given, that directly you have to multiply by the value of pi by 180. Okay, then you are automatically get your degree value into the radian value. Understand? Now if you want perfect value, not in terms of the pi, then what you have to do, place value of pi 22 by 7 and just multiply and divide by, and you are getting finally the actual value of 1 degree equal to 1.745 into 10 raised to minus 2 radian. Okay, now next you have to convert it the same thing, but the question is somewhat changed. That is given as what? 1 minute. Okay, they are given 1 minute. So what you have to do, you have to first of all convert your minute into the degree, and then you have to convert your degree into the radian. Now we know that 1 degree equal to how much minute? 60 minute. Okay, so we are applying the logic that 60 minute equal to 1 degree. So 1 minute equal to how much? So just cross multiply it. So 1 into 1 divided by 60. So you are finally getting 1 minute equal to 1 by 60 degree. Understood? Now you are getting your degree. Then what you have to do, pi by 180 से multiply कर दो. बराबर? तो आपका क्या हो गया? रेडियन में आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया अंदर? यस और नो? बराबर? तो यहाँ पे भी वही किया है कि आपका जो भी पार्ट था उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 60 कर दिया. देन यू आर गेटिंग योर मिनट वैल्यू इनटू द रेडियन वैल्यू. ओके, नाउ you have to convert it the same thing, but here the question is what? In second. That second you have to convert into radian. So again you have to do the same thing. 1 degree equal to 3600 second. So our 1 second equal to how much? So 1 divided by 3600 we are getting or not? Okay, so whenever you have the second answers, then what you have to do, you have to simply divide by the 3600 your second value, then you are automatically get your value into the degree. Now you are knowing the degree, just multiply by pi by 180, you are getting your answer in the radian form. Yes or no? बराबर है. चलो, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री, मिनट और रेडियन को किस तरह से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल हमको ये क्वेश्चन से क्या होता है, लर्न होता है अंदर. बराबर. उसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जांपल आता है उसमें क्या बोला गया है, एक बंदा है विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम इन, यानी कि एक टावर है जो उससे कुछ नज़दीक में और वो उससे कितना दूर है वो उसका डिस्टेंस फाइंड करने का ट्राई कर रहा है. ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी. तो सोच लो यहाँ पे टावर सी है और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो इसको ए नेम दे दो, यहाँ पे सी नेम दे दो अंदर, वैसा फिगर में भी यहाँ पे बताई गया है अंदर. बराबर. एंड स्पॉट अ वेरी फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विद द ए सी. बराबर. तो यहाँ पे जो ए सी है वहाँ पे कोई फार ऑब्जेक्ट है, वही लाइन पे वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है यहाँ पे. बराबर. अब क्या हो रहा है, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू द ए सी अप टू द, यानी कि ये जो ए सी की लाइन है उसे परपेंडिकुलर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है अंदर. बराबर. एंड ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है. ओके, एंड अगेन वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ये सी को भी देख रहा है अंदर. बराबर है. O and again, since O is very distant, the direction BO is practically the same as O, but he finds that line of sight C shifted from the original line side by the angle 40 degree. यानी कि ये जो दो लाइन उसकी विजिबल दूर के ऑब्जेक्ट की और सी पॉइंट की, उसमें उसको एंगल कितना डिफरेंस मिल रहा है, 40 डिग्री मिल रहा है. बराबर है, समझ में आ रहा है इतना पार्ट. तो अगर ये आपका 40 होगा तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है,
यस और नो। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल की थियरी लगेगी, तो ये वाला भी यहाँ पे 40 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया फाइनली, बराबर। अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अंदर, क्लियर, कि एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द ओरिजिन पोजिशनल, बराबर। यानी कि हमको अल्टीमेटली AC फाइंड करना है कि पर्सन से वो टावर कितना दूर है, वो हमको फाइंड करना है। तो अब देखो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर है, ये सामने की वैल्यू अवेलेबल है, एंगल की भी वैल्यू अवेलेबल है, और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एंगल के लिए कौन सी साइड हुई, एडजेसेंट हुई, और ये वाले क्या अपोजिट। तो एडजेसेंट और अपोजिट है, ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा था, tan थीटा लेते थे कि नहीं लेते थे, बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट डिवाइड बाय, यानी कि अपोजिट AB है हमारा, और डिवाइड बाय क्या होगा, AC होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। अभी आपके पास 40 डिग्री अवेलेबल, तो tan 40 फाइंड कर सकते हो, और आपके पास AB की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो आप AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको क्वेश्चन मार्क बना के अंदर, यस और नो, बराबर। तो AC इक्वल टू AB डिवाइड बाई tan 30, AB की वैल्यू 100 है, tan 40 की वैल्यू 0.8391 होगी, तो उसको डिवीजन करो तो आपको आंसर कुछ 119 के अराउंड मिलेगा अंदर, बराबर। फिर आपको क्वेश्चन होगा सर tan 40 आपने बोल दिया, पर हम कैसे कैलकुलेट करा अगर एग्जाम में पूछे तो, बराबर। तो हमारी स्कूल जब भी रेगुलर होगी तो कैलकुलेटर से उसको किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी फॉर्मूलाज और उसकी जो ट्रिक है वो मैं उस टाइम पे सिखाऊंगा, बराबर। तो तब तक के लिए हम होल्ड पे रखते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, सीधा गूगल का यूज़ करेंगे, tan 40 इक्वल टू हाउ मच, समझ में आ गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह से आपको AC क्या मिला अंदर आपका 119। या उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है कि हैंस द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन टू द टावर इज़ 119 मीटर, क्योंकि हमको वर्ड में पूछा है तो हमारे अंदर थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए ना, कि हमको भी वर्ड में आंसर देना चाहिए, बराबर है। चल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारा पैरेलैक्स मेथड पे डिपेंडेंट है। तो उसमें क्या बोला गया है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ है हमारी, उसके डायमेट्रिकली जो दो पॉइंट है वहाँ से मून को क्या करा गया है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है अंदर, और यहाँ पे जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट बन रहा है अंदर, बराबर। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, यानी कि अर्थ का डायमीटर हमारे पास अवेलेबल है अंदर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमको ये D फाइंड करना है, बराबर है। तो हमको सिंपली करना क्या है, ये रेडियस हो गई, ये एंगल हो गए, और ये आर्क हो गया। तो आर्क इक्वल टू क्या लिखते थे, रेडियस इंटू एंगल लिखते कि नहीं लिखते थे। हमको क्या डिस्टेंस फाइंड, रेडियस भी फाइंड करना हुआ लॉजिक के हिसाब से, तो क्या होगा, आर्क डिवाइड बाई थीटा होगा। अभी आर्क कुछ नहीं है, अर्थ का क्या है, डायमीटर है, दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, ओके, जस्ट प्लेस इट हियर। एंड थीटा 1 डिग्री एंड 54 मिनट, बट वी कैन नॉट यूज द डिग्री और मिनट वैल्यू इनटू द डायरेक्ट equation, we have to convert them into the radian. So how can we convert it, 1 degree plus 54 minute we can write down or not, because it is a 1 degree and 54 minute, so n means plus, okay. Now convert this 54 into the degree, so what you have to do, multiply, divide by 60, okay. So 6 9s and 6 10s, so what you are getting, 1 degree plus 9 divided by 10 degree equal to 1 degree divided by 0.9 degree, yes or no, बराबर। तो 1 डिग्री और 0.9 डिग्री ऐड करोगे तो क्या होगा, 1.9 डिग्री होगा। अभी डिग्री हो गया तो मल्टीप्लाई किससे करो, पाई बाई 180 से करो, तो आपको किस में आंसर मिलेगा, इसका रेडियन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो आपके पास एंगल की वैल्यू भी अवेलेबल है अब, और डायमीटर की भी वैल्यू अवेलेबल है, तो डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा अंदर। देखो एकदम सिंपल है अंदर, लॉजिक अप्लाई करना है, आगे का दिमाग पे छोड़ देना है, वो अपने आप ही करेगा अंदर। अगर आपने सब कुछ उसको करवाया तो छोटे के बच्चे सारी चीज़ों में क्या करेगा, जीत करेगा, और हमको एग्जाम्पल आता भी होगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे अंदर, बराबर। चलो इसके बाद का लास्ट 4th इलस्ट्रेशन हमको दिया गया है, वो कौन सा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड, द डिस्टेंस D from the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। यानी कि वहाँ पे डायमीटर दिया था, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला, यहाँ पे उल्टा दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हमको डायमीटर फाइंड करना है, बराबर। तो हमारी फिगर कैसे बनेगी यहाँ पे कि अर्थ है तो अर्थ का कोई एक पॉइंट से ही हमको ऑब्जर्व कर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट हियर डायमीटर ऑफ द सन, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ फिगर, वी आर टेकिंग 2 rays, एंगल इज फॉर्म हियर एंड हियर, वॉट एवर वी हैव राइट डाउन डी, दैट इज नथिंग बट इट इज आवर रेडियस, ओके, एंड दिस इज द डायमीटर, यस और नो। चलो अभी हमारे पास सब डेटा अवेलेबल है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ द सन, सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल,
So what we have to find out? Yes, arc that is the diameter. So radius is given 1.496 into 10 raised to 11, but theta is again given into the second. That you have to convert into which value? You have to convert it into the degree value. So what you have to do? First of all, write down 90/20 and divide it by 3600. Then you are converted your second value into the what value? Degree value. Yes or no? Then what you have to do? If you are getting your degree value, just multiply by pi by 180. Then you are getting your radian value. Okay, so finally you got your angle value into the radian, and you also have the distance, that is radius. Just multiply both of things and you are getting your answer, that is distance between the earth and the sun is equal to the what? 1.393 into 10 raised to 9 मीटर. ओके, आपने देखा होगा कि मून का अर्थ से जितना डिस्टेंस है, बराबर, मून का एक सेकंड, हाँ, तो मून से अर्थ का जितना डिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा डायमीटर तो सन का है, बराबर है. सोच सकते हो, मून का और अर्थ का जितना डिस्टेंस है उससे ज़्यादा तो डिस्टेंस से ज़्यादा तो और सन का खाली डायमीटर. तो सोचो सन कितना बड़ा होगा, बराबर. अगर आप मून के सेंटर पे अर्थ का और सन का एक डायमेट्रिक पॉइंट होगा और अर्थ के सेंटर, तभी भी ये डिस्टेंस क्या है, उससे भी ज़्यादा है अंदर, बराबर. तो हमारा सन रियली में बहुत बड़ा है अंदर. ओके, और आगे के दूसरे जो एग्जांपल है हम उसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.